को ज़िंदा रखना अपने अपने काम में वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है फरीदून, उसके बिना तो काम करने का फ़ायदा क्या है। बजरंगी सीक्वल के बारे में सलमान काफ़ी बार बात करते रहते हैं। बजरंगी कैरेक्टर इज़ ट्रूली एन आइकॉनिक कैरेक्टर और ऑब्वियसली बहुत लोगों से मिलते हैं तो वो बोलते हैं यार वो कैरेक्टर फिर से हमें देखना है। नाउ विद कार्तिक एज वेल बहुत बहुत ही क्लियरली एक वो अंदाज़ा हो रहा है कि कि दैट यू गाइज हैव रियली बॉन्डेड वेरी वेरी नाइसली। यू एंड आई नो कि अगर किसी एक्टर के साथ आप उनके ब्लॉकबस्टर के रिलीज़ के बाद आप मिल लो तो 1 घंटा तो सुनना पड़ेगा पिक्चर के बारे में और 1 मिनट के लिए भी उसके बारे में बात नहीं करें। आई फाउंड इट रियली रिफ्रेशिंग। कार्तिक स्टार्ट करते हैं प्यार का पंचनामा से, मोनोलॉग फेमस हो जाता है। उसके बाद उनकी काफ़ी फिल्में उनकी आई और काफ़ी साल उनका एक स्ट्रगल रहा। कार्तिक आर्यन इज द क्विंटेसेंशियल अंडरडॉग इन आवर इंडस्ट्री। Hi, this is Kabir Khan and you're watching Connect Cine with Faridoon. Stay connected. It's a huge privilege to have Kabir Khan with us. Chandu Champion is coming up. The trailer looks absolutely outstanding, and what an amazing filmmaker he is. So Kabir, thank you very much for being with us on Connect Cine. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. Always a pleasure, Faridoon. Good to talk to you. Amazing. All right. So Kabir, as we were discussing a short while back, I think in these times when movies are not doing that well in theater, it's the first look of any film that is really, I think, being noticed. Either it makes an impact or it doesn't. And as far as Chandu Champion is concerned, I think the first poster that came out in itself made everyone sit up and take notice, and the trailer has been absolutely brilliant as well. Are you happy with the response that has been coming your way so far? You're absolutely right, Faridoon. I think the fact that business in the theaters has not really been, we're not really seeing the kind of numbers that we used to see pre-COVID has been a worrying point for all of us. Right. And we realized while making this film that we will have to do something that attracts people to come back and see it as a theatrical spectacle. See this film as something that if we go and see this in the theaters, we will enjoy it much more than watching it on their televisions back home. So every step that we've taken in our promotions has been with that in mind. We were very clear. I was very clear that even the posters that we use, these are all location stills. None of these are posed for in studios, because I just feel though you can post for them in studios, there's a little bit of glamorous element you can bring into that. Nothing like just grabbing a moment from the scenes itself while they're being shot, because they come with a story. So even the first poster of him running in that loincloth with mud all over him, you see it and you realize you want to know what the story behind this is. Where is this boy running away? Where is he? Who is he running away from? And that's sort of worked for all 3 of our posters that we released till now. And I'm really happy with the response we've been getting to the posters and of course to the trailer, which has been hugely liked, and really thrilled with the feedback we're getting on that, and keeping fingers crossed that people decide to come in big numbers back to the theaters on the 14th of June. अगर आप कुछ बताना चाहें कि जो एक एलिमेंट ऑफ पेट्रियाटिज्म फिल्म में है, वो आपने जिस तरीके से इन्फ्यूज़ किया है पूरे आई थिंक नैरेटिव में, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था? वो फरीद जो आपने मेरी पिक्चरें देखी हैं और जिस तरीके से मैं द वे आई डील विद पेट्रियाटिज्म, मेरे को हमेशा वो लेयर्स में आता है. आई नेवर लाइक इन योर फेस पेट्रियाटिज्म की, मतलब स्लोगनियरिंग हो रही है या चेस्ट थम्पिंग हो रही है. और आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट इज़ लाइक दिस, इन द लेयर्स बीनीथ. जो ये कैरेक्टर है मुरलीकांत पेटकर, इनको कोई स्लोगन, कुछ चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है. जो ये कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, दैट इटसेल्फ इज सो पेट्रियाटिक, सो अपलिफ्टिंग, दैट यू फील प्राउड दैट अ मैन लाइक दिस, a fellow Indian is doing this. He makes you feel proud to be an Indian. He makes you want to stand up and cheer for the country. And that is very important in Chandu Champion. The story of a soldier, a man who refused to surrender and kept going till he finally realized his dream. Right. जो आपके जो जर्नी आई थिंक बहुत ही फैसिनेटिंग है. हम लोग के बहुत ही डिटेल कॉन्वर्जेशंस हम लोग के हुए हैं. मैं आज देख रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने नोटिस किया कि आपके इंटरव्यूज़ में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुई हैं जो हम लोगों ने साथ में किए हैं. ये बहुत ही फैसिनेटिंग आपकी जो जर्नी इस वजह से हो जाती है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, फिर आप मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में आप आते हैं. काबुल एक्सप्रेस इज़ द फर्स्ट फिल्म दैट यू पार्ट ऑफ. उसके बाद आपकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बहुत चली हैं.
आपने आपकी फिल्मों ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, विच हैज़ बीन ट्रूली अनप्रेसिडेंटेड। बजरंगी भाईजान आपकी एक ऐसी फिल्म होती है जिसमें कि मैक्सिमम जो फुटफॉल्स हैं थिएटर में किसी भी हिंदी फिल्म के लिए वो अचीव करती है। ये जो आपका एक कॉन्फ्लुएंस है कि एक कुछ आप कहना चाह रहे हैं अपनी फिल्मों के ज़रिए, उसमें एक कोई कहानी है जो कहानी एक कुछ अलग तरीके से आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये एक बॉक्स ऑफिस का एक समझ भी किया कि ये चीज़, ये इमोशंस जो हैं वो लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं, लोग उसमें रोएंगे, लोग उसमें हंसेंगे, लोग उसके अंदर सेलिब्रेट करेंगे। वो जो मिक्सचर आप करते हैं, ये आपका जो एक ऑर्गेनिक्स एलिमेंट है, ये हैज़ इट बीन लाइक अ ओवर द ईयर्स, इट हैज़ इट हैपेंड, या फिर हुआ कैसे वो? बिकॉज ये आई पर्सनली फील दैट्स व्हाट मेक्स कबीर खान यूनिक। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू सेइंग दिस फरीदून, क्योंकि जब मैं एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर इस इंडस्ट्री में आया था तो उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्रीज को ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती थी। आजकल की यंगर जनरेशन बहुत फैसिनेट होती है और बहुत एक्साइटमेंट के साथ बात करती है कि यार आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है। एक तो एक्सेस बहुत बढ़ गया है इंटरनेट की वजह से, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज हम देखते हैं, OTTs पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं। जब मैं आया था तो इट वॉज ऑलमोस्ट कि मुझे कुछ लोग कहते थे यार बताना मत लोगों को तुम डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हो, क्योंकि उनको लगेगा तुम बोर करोगे। क्योंकि हमारे जहन में जो डॉक्यूमेंट्रीज हम बोलते थे, हमें आई थिंक वो फिल्म्स डिवीजन की एक बोरिंग डॉक्यूमेंट्रीज आती थी फीचर फिल्म से पहले, जिसमें हमें सबको बैठना पड़ता था 15 मिनट के लिए, वो हमारे दिमाग में डॉक्यूमेंट्रीज होती थी। तो और आज अगर कुछ मेरा USP है तो यही है कि मेरी एक डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड है, मेरा एक अप्रोच है सिनेमा में, चाहे कितनी भी मेन स्ट्रीम और कमर्शियल स्टोरी टेलिंग हो, एक अप्रोच है कि रिसर्च लेड राइटिंग होती है, हर डिटेल में हम घुसते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर एक रियल कहानी है, या अगर रियल कहानी नहीं है, अगर फिक्शनल भी है बजरंगी की तरह, तो टेक्सचर रियल रहे, कुछ लोकेशन दिखा रहे हैं तो वो रियल रहे, कपड़े रियल रहे, एक दुनिया जो है क्रेडिबल रहे और रियल रहे, और उसमें फिर आप एक लार्जर देन लाइफ कहानी सुना सकते हैं। तो आई थिंक एक बहुत ही ऑर्गेनिक, और जिसे कहते हैं ना कि अभी रेट्रोस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं कि अच्छा ये क्या मेरा अप्रोच था, इसको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलाइज करके एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं सोचता हूँ कि फिल्म मेकर ना गट फीलिंग से ही चलता है। तो ये सारी चीज़ें असल में क्या होती हैं, इंटरनलाइज्ड होती हैं। ये चीज़ें मेरे में इंटरनलाइज्ड हैं कि मुझे लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे बचपन से फिल्में देखी हैं, बिगेस्ट फैन ऑफ मिस्टर बच्चन, माय मदर यूज्ड टू टेक अस टू ऑल दीज फिल्म्स, तो वो एक है। लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज कराए तो वो भी एक इंटरनलाइज्ड है कि यार दुनिया थोड़ी क्रेडिबल दिखनी चाहिए, लॉजिकल दिखनी चाहिए, रियल दिखनी चाहिए। तो कोशिश यही करी, मेरे यशराज की ट्रेनिंग में भी आदि सपोर्टेड मी अ लॉट कि यार ही ऑलवेज टोल्ड मी कि बहुत अच्छा मिक्स है तुम्हारी स्टोरी टेलिंग लार्जर देन लाइफ और एंगेजिंग, ड्रामेटिक, इमोशनल है, लेकिन दुनिया बहुत रियल होती है। एंड आई थिंक आज की ऑडियंस को वो अच्छा लगता है। तो होपफुली चंदू चैंपियन में, क्योंकि ये तो है ही ट्रू स्टोरी, लेकिन इतनी मतलब लार्जर देन लाइफ ट्रू स्टोरी है कि जब मैंने पहली बार इनके बारे में पढ़ा था तो मुझे लग रहा है ये किसी ने झूठ लिखा हुआ है, ये हो ही नहीं सकता कि ऐसा एक इंसान है जिसने ये सब किया है और हम उनको जानते भी नहीं है। बिकॉज ऑनेस्टली मुझे लगता है जो मुरलीकांत पेटकर ने जो अचीव किया है किसी और मुल्क में, ये हमारे टॉप हीरोज में काउंट किए जाते। बदकिस्मती से हम इन्हें भूल चुके हैं, और अब 50 साल बाद इनको प्रेजेंट करेंगे हम टू द ऑडियंसेस, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट पीपल विल बी शॉक्ड व्हेन दे एक्चुअली सी कि इन्होंने नॉट ओनली व्हाट ही अचीव, लेकिन व्हाट ही हैड टू गो थ्रू टू अचीव व्हाट ही डिड। जी, आपने मुझसे एक बार आपने मुझसे कहा था कि आपको नई नई कहानियाँ कहने में आपको मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है। अगर आपको सिर्फ कमर्शलाइज ही करना होता अपने आर्ट को, तो आपने बजरंगी भाईजान 2 आपने करी होती, एक था टाइगर सीरीज़ को आप आगे लेके गए होते एज इन टर्म्स ऑफ सीक्वल एज वेल। एक ये रूह को ज़िंदा रखना अपने काम में, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है फरीदून, उसके बिना तो काम करने का फ़ायदा क्या है। वो पैशन के साथ जब आप किसी सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं, और हमारे जो मीडियम है वो ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में आप उसको रियलाइज़ कर सकते हैं। जिस पैशन से मैं एक स्टोरी को सेलेक्ट करता हूँ और बोलता हूँ कि अच्छा मेरे को ये बनानी है, वो पैशन मेरे में 1.5-2 साल रहना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोसेस ही ऐसा है। तो अगर रोज़ उठ के वो एक्साइटमेंट ना हो कि यार आज जाके ये करना है, आज जाके ये करना है, अगर वो नहीं रहे तो फिर काम करने का मज़ा चले जाता है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही
द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग को निगलेक्ट करें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आगे मौके नहीं मिलते हैं आपको. जी. बट एट द सेम टाइम हम ट्रेडर्स नहीं हैं, कि आज कॉफ़ी चल रही है तो कॉफ़ी में डील करते हैं, आज अगर सोया बिक रहा है तो सोया में डील करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे थोड़े बहुत हम आर्टिस्ट हैं, और हम वही बना सकते हैं जो हमें बनाना आता है. ऐसा नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ कि अरे इस किस्म की फिल्में चल रही है मैं ये बना लेता हूँ, नहीं, वो होगा ही नहीं. आई विल 100% फेल इफ आई ट्राई एंड डू दैट. कम से कम मेरे को ये पता है कि मैं अपनी किस्म की फिल्म जो मैं ट्रूली जानता हूँ बनाना और जिसमें मैं बिलीव करता हूँ वो बनाऊंगा, तो चांसेस है कि ये चलेगी, क्योंकि कन्विक्शन से बनी होंगी, एक क्रेडिबिलिटी उनमें होगी. जहां मैं कोशिश करने लगूं किसी और की तरह फिल्म बनाने के लिए, तो वो तो 100% मैं फेल करने वाला हूँ. Right. तो इसलिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. आई डोंट वांट टू से इट एज ट्राइंग टू गेट ऑन अ पेडेस्टल एंड से, ओ आई बिलीव इन दिस इन माय डूड. ऑनेस्टली मैं और कुछ बना ही नहीं सकता. मैं यही बना सकता हूँ. मैं अपनी कहानी अपने तरीके से ही सुना सकता हूँ, क्योंकि मुझे यही एक तरीका आता है अपनी कहानी सुनाने का. एंड होपफुली आई बीन लकी ऑल्सो कि ऑडियंसेस ने ज़्यादातर मुझे सपोर्ट ही किया है. लॉट ऑफ माई फिल्म्स हैव डन वेल. Even some of the films that didn't do well at the box office still resonate with audiences. And I keep meeting people who say कि ये बहुत खूबसूरत कहानी है, ये मज़ा आया. काबुल एक्सप्रेस को 15-16 साल हो गए. आई थिंक कमर्शियली में भी सबसे कम पैसे काबुल एक्सप्रेस नहीं कमाए होंगे, लेकिन आज तक लोग अगर आके मुझे कहते हैं कि आपकी बेस्ट कहानी जो है वो काबुल एक्सप्रेस थी, तो बहुत अच्छा लगता है. सो इट्स गुड टू बी एबल टू have the ability to keep telling the stories the way you can, because असली में success तो वही है फरीदुन. I'm successful till the time I'm allowed to tell stories in my way. जिस दिन मुझे लोग बोलेंगे नहीं अब इस तरीके से बनाओ, उस दिन मेरी सक्सेस खत्म हो गई. क्या बात है. आई थिंक काबुल एक्सप्रेस, आई थिंक आपकी फिल्म की ये भी खासियत है, और मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का उसमें कुछ हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. काबुल एक्सप्रेस आज भी अगर देखी जाए तो चाहे कैमरा वर्क हो या बैकग्राउंड स्कोर, इट इज़ सो स्टनिंग स्टिल दैट इट आई थिंक इट जस्ट सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम. जैसे अगर चंदू चैंपियन की अगर हम एक थीम की बात करें, जो एक फेलियर से वो डील करता है और जिस तरीके से नेम कॉलिंग होती है, आपने भी अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में आपने आपने एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं. फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट, फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से फिल्म नहीं चली, एंड व्हाट यू हैड टू, द वे द सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म व्हिच वाज देयर वाज अ बिट हार्श. 83 में फिल्म के कमाल के रिव्यूज़ मिल रहे थे, पैंडेमिक हो जाता है. लेकिन फिर हमने जिसके बारे में बात भी किया है कि अनफॉर्चुनेट रहा कि सर्टेन ट्रेड के लोगों ने जिस तरीके से जो वजूहत बताई कि बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने कि 2 दिन में ही पैंडेमिक हो गया था, एंड ऑब्वियसली थिएटर्स ही बंद हो गए थे. तो फिर भी जो आपने एक एक्सपीरियंस किया, जिस तरीके से सर्टेन चीज़ें कही गई आपको, तो ये आपने जो चंदू चैंपियन का एक जो एलिमेंट है, कुछ क्या आपने अपने पर्सनल उससे भी उसको एक एस्टैब्लिश करने का कुछ है, लाइक हैव यू, बिकॉज यू बीन थ्रू सर्टेन थिंग्स योरसेल्फ एज वेल. वो तो जाहिर सी बात है फरीदुन की, अगर मैं एक कहानी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो उसका एक जो रेजोनेंस है वो मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मुझे समय मैं भी आइडेंटिफाई करता हूँ उससे. एक कहानी है एक इंसान की जिसका एक सपना था, एंड लाइफ थ्रोज एवरीथिंग एट दैट पर्सन टू डीरेल हिम फ्रॉम दैट ड्रीम. लेकिन वो हर बार खड़े होते हैं और हर बार कहते हैं कि नहीं, मेरा ये सपना है और मैं उसकी तरफ जाऊँगा. तो वो भी मेरे लिए भी, और मेरे लिए क्या है कि फरीदुन, मैं कभी ये नहीं भूलता कि मैं कहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री में. मैं बहुत लोगों को एक्चुअली बोलता हूँ, कुछ मेरे जैसे जूनियर्स हैं या कुछ कभी कभी मेरे पास आते हैं मिलने के लिए, एडवाइस के लिए या कुछ, मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि ठीक है, अगर एक पिक्चर नहीं चली, आगे नहीं चली, आप नेवर फॉरगेट आप किस सपने के साथ आए. मेरा सपना क्या था फरीदुन? मेरा सपना था, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जो दिल्ली से बॉम्बे आया, किसी को नहीं जानता था इस इंडस्ट्री में. मेरा सपना कि ज़िंदगी में एक बार बड़े पर्दे पे डायरेक्टर बाय कबीर खान आ जाए, बस ज़िंदगी सफल हो जाएगी. वो हो गया. उसके बाद हर चीज़ जो आ रही है वो बोनस है. तो मैं ना, और आई थिंक हो सकता है मेरी जो यशराज की ट्रेनिंग है दैट हेल्प, की कभी सक्सेस को सीरियसली नहीं लिया, तो सो कॉल्ड फेलियर को भी कभी दिल पे नहीं लिया. नॉट टू से कि बुरा नहीं लगता है. जब 83 didn't do the numbers we were expecting it to do, simply because I personally feel, and I always say this, I feel it's my best film. It's as a director, as a craft, उससे बेहतर फिल्म मैंने बनाई नहीं है. Absolutely. तो ऑब्वियसली जब आपने अपनी बेस्ट फिल्म बनाई है और फिर अलग, अरे यार ये हो गया और फिर चल नहीं रही है, यू नो हाउ फिकल द ट्रेड सो कॉल्ड एनालिस्ट कि मतलब एनालाइज नहीं कर पाते कि
कोई उसमें मेंशन नहीं कर रहा है कि यार ओमिक्रॉन आया, थिएटर्स बंद हो गई, लोग जाने से डर रहे थे, वो सब नहीं होता है। सिर्फ नंबर देख के बोल देते हैं ये चली या नहीं चली, तो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली 1-2 महीने के लिए बहुत बुरा लगता है। लेकिन उसके बाद अभी 4 साल बाद जब मैं उसको देखता हूँ तो आई डोंट इवन थिंक ऑफ दैट, क्योंकि 4 साल बाद भी मैं देखता हूँ यार 4 साल हो गए हैं, आज भी एक दिन नहीं हुआ है जब मेरे फोन पे कम से कम 4 मैसेज उस फिल्म के बारे में नहीं है। बिल्कुल। तो उसका मतलब उसका रेजोनेंस बहुत हाई है, और वो फिल्म that's one of the films that I will be remembered by. Absolutely. जब when I finally hang up my boots, जो 2 या 3 फिल्में 4 फिल्में मेरे नाम के अगेंस्ट लिखी जाएंगे, जिनके बारे में बात किया जाएगा, उसमें से 83 जरूर है। तो फिर वो जो एक थोड़ा सा डिप्रेशन आता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, एंड यू हैव टू बिलीव इन व्हाट यू आर मेकिंग, यू हैव टू बिलीव कि आप उसकी वजह से डीरेल नहीं हो सकते। अब इमीडिएट रिएक्शन होता कि अरे 83 नहीं चली, एंड लोगों ने मुझे बोला भी यार तुम फिर से एक स्पोर्ट्स फिल्म बना रहे हो, क्यों? आई सेड मैं अपनी फिल्मों को ऐसे देखता ही नहीं हूँ, मेरे लिए ये स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, मेरे लिए 83 भी स्पोर्ट्स फिल्म नहीं थी। स्पोर्ट्स तो बैकड्रॉप होता है, लव बैकड्रॉप होता है, वायलेंस बैकड्रॉप होता है, कहानी तो ह्यूमन स्टोरी होती है। और वो चंदू में इतनी अमेजिंग ह्यूमन स्टोरी है कि मैंने कहा दैट इज व्हाई आई वांट टू से इट, बिकॉज इट इज सच अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ कि उसका बैकड्रॉप आप कुछ भी रखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो, थ्रिल हो, कुछ भी हो, लेकिन असल में तो उस इंसान, उस कैरेक्टर के साथ आप उस जर्नी पे जाने वाले हो। सो दैट्स बीन माय रिस्पॉन्स ऑलवेज, गो विद योर गट फीलिंग, गो विद द स्टोरी जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है, और डोंट फॉलो कि अच्छा ये सक्सेस लोगी यही करता है। जैसे आपने बोला अगर मेरे को वो करना होता तो मैं आज तक टाइगर ही बनाता रहता या बजरंगी पार्ट 3 बन रही होती। लेकिन मुझे लगता है वो एज अ प्रोड्यूसर वो करना चाहिए, बिकॉज उस एक फ्रेंचाइज बन जाता है, फिर आप यू कैन गो फर्दर। बट एज अ डायरेक्टर मुझे हमेशा आज तक तो ऐसा लगा है कि नहीं, मैं फिर से बनाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा। बट हो सकता है इन द कमिंग ईयर्स कुछ एक्साइटिंग आ जाए विद वन ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आई हैव क्रिएटेड, जो फिर से मुझे एक्साइट करने लगे। सो नेवर से नेवर, लेकिन आज तक तो कभी इतना एक्साइटमेंट हुआ नहीं है कि एक कैरेक्टर के साथ फिर से वो जर्नी पे जाऊंगा। बजरंगी सीक्वल के बारे में सलमान काफ़ी बार बात करते रहते हैं। जी, तो देखिए ऑब्वियसली बहुत ही वो बजरंगी कैरेक्टर इज ट्रूली एन आइकॉनिक कैरेक्टर, और ऑब्वियसली बहुत लोगों से मिलते हैं तो वो बोलते हैं यार वो कैरेक्टर फिर से हमें देखना है। लेकिन मेरे जहन में बजरंगी भाईजान की कहानी सिर्फ पवन चतुर्वेदी की नहीं है, वो मुन्नी की भी है, और मुन्नी की कहानी का आर्क एक बहुत कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आगे बढ़ना है तो ऑफकोर्स बढ़ सकते हैं, एंड कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो व्हाई नॉट। इफ यू आस्क मी अभी कुछ है स्क्रिप्ट के लेवल पे तो नहीं, आइडियाज हैं, एंड देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग वेज ऑफ टेकिंग बजरंगी फॉरवर्ड। इट कुड बी एडवेंचर्स ऑफ बजरंगी एंड चांद नवाब, इट कुड बी सो मेनी वेज ऑफ टेकिंग इट फॉरवर्ड, लेकिन एज ऑफ नाउ एट अ स्क्रिप्ट लेवल हमारे पास कुछ नहीं है। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। मैं आपका मुकेश के साथ में आपका इंटरव्यू देख रहा था और आपने जिक्र किया कि आपको आपके दोस्त टाइगर बुलाते थे, एंड एक था टाइगर हैपेंड, और बहुत से इवन काबुल एक्सप्रेस में भी बहुत से जो रेफरेंसेस हैं जो आपका जो ये लोग लैंड करते हैं, दैट्स हाउ यू लैंडेड एज वेल। सो बहुत से रेफरेंसेस आपके जो हैं वो पर्सनल स्पेस से आपके आते हैं बहुत हद तक। डू यू इन अ वे enjoy this process when you incorporate your personal references in your movies as well? And I'm saying it especially because of Chand Nawab. Chand Nawab as well. Chand Nawab को आपने जैसे आपने incorporate किया, real life Chand Nawab भी हैं. I think it is fascinating. I think फरीद, I'm a writer director, ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन प्लेस खुद लिखता हूँ। तो जब हम लिखते हैं बेसिकली हम क्या लिखते हैं, जो हमने जिंदगी में पढ़ा है, देखा है, सुना है, एक्सपीरियंस किया, यहीं से तो हमारा रॉ मटेरियल आएगा ना, और कहाँ से आएगा जी? हमने जो एक्सपीरियंसेस करे हैं, जो लिटरेचर पढ़ा है, जो किताबें पढ़ी हैं, जो पोएट्री पढ़ी है, जो सुनी है, वही उस सब का एक सार जो है निकल के हमारे राइटिंग में आता है, हमारा वर्ल्ड व्यू वहीं से आता है। तो एज अ राइटर हर चीज़ कुछ इंटरेस्टिंग जो दिखती है, कुछ दिलचस्पी चीज़ दिखती है तो हम पाक कर लेते हैं। जैसे आपने बोला चांद नवाब का वीडियो मुझे याद है, हमने देखा तो हंस के मतलब मेरे पेट में दर्द हो गया था हमारे। तो मैंने एक मेंटल नोट बना लिया था, यार कभी जिंदगी में ऐसा कैरेक्टर यूज कर सके तो करेंगे। और बजरंगी में जब सेकंड हाफ लिख रहे थे तो दिमाग में आया कि यार अब देखो बजरंगी अब पाकिस्तान पहुंच गया है, नाउ उसको ही नीड्स एन एलाय कि आगे कहानी कैसे बढ़ेगी, वो तो खो जाएगा। तो फिर अचानक आया थॉट कि वो जो जर्नलिस्ट था
अगर वो उसको मिल जाए इमीडिएटली आफ्टर रिकॉर्डिंग दैट वीडियो दैट इज गॉन वायरल, तो फिर इंटरेस्टिंग सिचुएशंस आ सकते हैं. तो दैट्स हाउ ही वाज पुल्ड इन. तो ये बहुत होता है मेरे राइटिंग प्रोसेस में. ज़्यादातर जो नाम हैं मेरे सारी फिल्मों में, जितने कैरेक्टर्स के नाम हैं, दीज आर पीपल हु आई हैव नोन. Except of course if it's a true story, then I can't take that liberty. लेकिन if they're fictional characters, those are either my friends or relatives or people I've met somewhere in life. Right. मतलब मुझे याद है एक नाम है बजरंगी में बू अली. तो लोगों ने बोला ये क्या नाम है, लेकिन वो मेरा कज़न है. फर्रुखाबाद में हमारे तो गांव है कायमगंज, वहाँ में मेरा कज़न है. और मेरे को बचपन में भी उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, तो वो मेरे दिमाग में रखा है. दिस केम आउट व्हेन आई वाज राइटिंग बजरंगी. राइट. मुझे याद है कि इजिप्ट में जब मेरे आपसे ऑफ कैमरा मेरे बड़े दिलचस्प आपके साथ में डिस्कशंस रहे, तो मुझे आपने एक बड़ी फैसिनेटिंग से बात बताई और मुझे वो बहुत, आई थिंक आपका जो पूरे पर्सनैलिटी में, आई हैव नोन many filmmakers and many people from within the industry. You told me कि that आपका जो आपके जो ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत जो लम्हे रहे हैं, and you are a journey, you are someone who's on a constant journey, वो आपके सईद नकवी साहब के साथ में रहे. You traveled around 60 countries with him, and you still maybe you learned the maximum from him and traveling with him about life, about I think world in general. ये जो आपका एक और अभी भी आपने अपने आप को डिटैच करके रखा हुआ है. यू स्टिल नॉट लाइक अ रेगुलर फिल्म पर्सनैलिटी. यू स्टिल हैव अदर इंटरेस्ट which is fascinating. डू यू थिंक दैट कि ये एस्पेक्ट आपका जो कि आप अपने को एक फिल्म उससे अलग रख पाते हैं, दैट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंटली रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ इन अ वे एज वेल? आई थिंक सो फरीदून. ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि नहीं जुड़ना नहीं चाहिए या अलग रहना चाहिए. नहीं, कहती वो इनहेरेंटली एक पर्सनालिटी ट्रेट है. थोड़ा सा मैं एक्चुअली इंट्रोवर्टेड हूँ एज अ पर्सनालिटी, तो एक स्टेप बैक स्टेप पे ही रहता हूँ. आई डोंट समटाइम्स बिलीव लाइक, कभी कभी लोग हंसते हैं जब मैं बोलता हूँ कि नहीं यार आई एम नॉट रियली इन अ सर्कल. जैसे यार क्या बातें कर रहे हो, तो 10 फिल्में कर चुके हो, इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स, यशराज के साथ काम कर चुके हो, सलमान के साथ काम कर चुके हो, इन सब के साथ हाउ वुड यू कॉल योरसेल्फ स्टिल इन? आई सेड इट्स नॉट अबाउट वर्किंग विद द inner sort of circle of Bollywood. It's just the way you look at it. मैं अभी भी एक थोड़ा सा डिटैच्ड मेरा एक व्यू रहता है. मतलब मैं दूर से देख के आई कैन बी अ लिटिल ऑब्जेक्टिव अबाउट व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, एंड देयरफॉर आई थिंक आई हैव बीन एबल टू कीप ऑल माय अदर इंटरेस्ट्स अलाइव बिकॉज ये भी सईद भाई ने एक बोला था एक लाइन की, काम बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन काम आपकी ज़िंदगी नहीं होती है. क्या बात है. आपकी ज़िंदगी में बहुत अलग चीज़ें भी होती हैं, और अगर आप वो उन पे यू वोंट कीप देम एज पार्ट ऑफ योर लाइफ, फिर आपका काम भी सफ़र करेगा. आप यू विल बिकम ब्लिंकर्ड. और एज अ फिल्म मेकर स्पेशली, अगर हम सिर्फ मतलब सिर्फ ही काम ही करते रहेंगे, तो स्टिमुलस कहाँ से आएगा हमें, ट्रिगर्स कहाँ से आएंगे? आई थिंक वो हम विल बिकम वेरी ड्राई एज आर्टिस्ट. कुछ देखा नहीं, कुछ वर्ल्ड व्यू नहीं है, कुछ पढ़ नहीं रहे, कुछ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पिक्चरें बनाए जा रहे हैं, पिक्चरें बनाने जा रहे हैं, स्टूडियो में जा रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आप आफ्टर सम टाइम बहुत बोरिंग हो जाओगे, एंड ग्रेटेस्ट डेंजर है आप इररिलेवेंट हो जाओगे, क्योंकि यू नॉट कीपिंग अप विद द टाइम्स. राइट. एक और मैं आपसे सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था. मैं आपको बहुत सालों से आपको मैं जानता हूँ. You are someone who looks the same the way he did 10 years back. ये जो आपकी जो मतलब जवानी का जो राज है, उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं. वो तो आई थिंक आई हैव टू थैंक माय पेरेंट्स फॉर probably giving me good genes. But having said that, I do take care of myself. मैं जो मुझे लोग जानते हैं, they know कि मैं बहुत रेगुलरली जिम जाता हूँ. एक बहुत शौक है मुझे, एंड it's my meditation, it's my me time. वो जो 1 घंटा जिम में होता है, सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग भी उस टाइम चल रहा होता है. जो थॉट्स आते हैं मेरे फिल्म के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में, सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे आते हैं, और इट्स माय लाइफस्टाइल. तो वो एक है मेरा नॉन नेगोशिएबल. शूटिंग के टाइम पे इट्स द बेस्ट. लोग सरप्राइज होते हैं, उनको लगता है शूटिंग के टाइम पे कैसे. मैं शूटिंग के टाइम पे आई एम एट माई हेल्थीएस्ट, बिकॉज इतना रेजिमेंटेड लाइफ होता है. आपको सुबह उठना पड़ता है 5 बजे, आप 12 घंटे शूट करते हैं, उसके बाद आप वापस आते हैं, अब
वर्कआउट करते हैं. अब जैसे चंदू चैंपियन में तो बहुत मजा आया क्योंकि कार्तिक आर्यन वाज गोइंग थ्रू सच अ ह्यूज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब 39% से 7% बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आप सोच सकते हैं. तो है 1.5 साल उसने मेहनत करी है जिम में. तो हम लोग शूट करते थे और कार्तिक को तो जाना ही जाना था. इट वाज पार्ट लाइक इट वाज हिज ड्यूटी कि जाना ही है जिम में. तो हम सब चले जाते थे. सो वी यूज्ड टू रियली एंजॉय दैट 1 hour that we used to spend together. We used to talk about the day that we've, you know, all the scenes we have shot, what we're going to be shooting together. So that was very fruitful, that interaction, that 1 hour, 1.5 hour in the gym. It kept us healthy, it kept us energetic, and also it was a great space to sort of come together as a team. So I always enjoy that aspect of shooting. ओके. एक बहुत ही आई थिंक दिलचस्प सा आई थिंक जो एलिमेंट आपके आपके आई थिंक पूरे करियर में देखने में आता है वो है कि यू हैव अ वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग विद ऑल योर एक्टर्स. अरशद भाई हो गए, जॉन इन से फॉर एग्जांपल इन काबुल एक्सप्रेस, देन नील एंड जॉन एंड कटरीना इन न्यूयॉर्क. आफ्टर दैट सलमान सर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. आई थिंक बहुत सालों से जानते हैं हम सब लोग, और बड़े दिलचस्प किस्म के वो इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है. लेकिन सलमान सर का ये होता है कि बहुत बार जो उनके साथ उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो डायरेक्टर्स जो हैं वो कुछ हद तक ये है कि जो मतलब वो जो कहा जाता है वो करते हैं. सलमान सर उसमें कास्टिंग भी हो रही होती है उनकी फिल्मों में, और बहुत सारी चीज़ें और भी होती. यू हैड लाइक अ वेरी इक्वल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद सलमान खान, एंड यू ओपनली सेड दैट अगर कोई आपको चीज़ पसंद नहीं होती तो आप उसको वॉइस आउट करते हैं. मे बी दैट इज़ व्हाई आई थिंक ही रिस्पेक्ट्स यू सो मच. सेम विद रणवीर, you had a fantastic chemistry with him. Now with Karthik as well, बहुत ही clearly एक अंदाज़ा हो रहा है कि कि that you guys have really bonded very very nicely, and एक आपका एक chemistry है, एक equation है. वो कितना important है आपके लिए अपने actors के साथ में कि वो आपसे मोहब्बत करें और आपके साथ में bonding develop हो? आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है फरीदून. मैं सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि ये ऐसी बॉन्डिंग पूरे क्रू में रही. बिकॉज क्योंकि क्या है कि देखिए, मैं एक कहानी लिखता हूँ और फिर वो कहानी लिखने के बाद 150-200 लोग पहुंच जाते हैं एक लोकेशन पे, और कभी कभी 1 साल, कभी कभी 6 महीने, कभी 1.5 साल के लिए सब मेहनत करते हैं कि वो विजन एक आप स्क्रीन पे लाए. लेकिन जितना आप उनको इन्वॉल्व करोगे, जितना आप वो आपके ड्रीम और आपके पैशन में कोलैबोरेटर्स होंगे, उतना वो एक्स्ट्रा दे विल गो द एक्स्ट्रा माइल. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कोलैबोरेटर तो एक्टर है. अगर एक्टर और डायरेक्टर की कोलैबोरेशन में सिंक ना हो तो फिर चांसेस है कि वो विजन गिर जाएगा. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टर के साथ एक रैपो, एक फ्रेंडशिप, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए. आई डोंट वांट टू कॉल इट फ्रेंडशिप, बट एक बहुत इजी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि जो भी उसके दिमाग में आ रहा है, उनके दिमाग में आ रहा है, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, हम बोलते रहें ताकि हम क्रॉस पर्पसेस पे काम ना करें. और ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि और एंड इट्स वेरी नेचुरल कि दो क्रिएटिव लोग एक ही चीज़ पे ज़रूरी नहीं है कि वो एग्री करें. सब अपना अपना एक नज़रिया लाते हैं, एक पर्सपेक्टिव लाते हैं, और वो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आई वुड हेट टू से कि आई एम सच अ एरोगेंट क्रिएटिव पर्सन कि मैं बोल रहा हूँ कि आई एम 100% राइट ऑल द टाइम. बहुत बार ऐसा होता है कि एक्टर का एक पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं एंड ट्रिगर्स अ थॉट एंड आई स्टार्ट थिंकिंग, अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, और ये जो बोल रहे हैं ये आई थिंक विल मेक द सीन बेटर or will make the character better. Because you must give credit to the fact that all these, actors who have reached a certain level of success, ये भी कुछ तो जानते हैं that has made them come to the position that they are in. तो वो collaboration बहुत important है. So an easy communication and a true sense of holding each other's hands and going forward बहुत important है. And कार्तिक के साथ it's been a fabulous journey. Really, मैं कार्तिक से पहली बार प्रॉपर्ली मिला था व्हेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम अबाउट दिस फिल्म. उससे पहले ज़्यादा मैं जानता नहीं था कार्तिक को. एंड जो मैंने सोचा था कि एक आधे घंटे में बात करके निकल जाएंगे, इट बिकेम अ 2.5 hour कॉन्वर्सेशन. और उसमें एज अ डायरेक्टर आप बेसिकली क्या यही ढूंढते हैं ना कि ये इस इंडिविजुअल के साथ क्या आप अपना पैशन शेयर कर सकते हैं, अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं, और ये उस दुनिया में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं. इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन इन्होंने पहले क्या किया है. इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन माई कास्टिंग ऑफ कार्तिक हैज नथिंग टू डू विद हिज बिग सक्सेसफुल फिल्म्स बिफोर दैट, और दैट ही इज दैट हॉट राइजिंग स्टार एंड दैट्स व्हाई आई हैव कास्ट हिम. इट्स बिकॉज वो एनर्जी मुझे दिखाई दी. एंड आई टेल यू वन थिंग विच इज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर मी, फरीदून. आई मेट हिम एक्चुअली, आई थिंक भूल भुलैया 2 के
रिलीज के 15 या 20 दिन बाद मिला हूँ मैं, ठीक है, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई थी इनकी फिल्म। वो 2 घंटे में ही नेवर स्पोक अबाउट इट। यू एंड आई नो कि अगर किसी एक्टर के साथ आप उनके ब्लॉकबस्टर के रिलीज के बाद आप मिल लो तो 1 घंटा तो सुनना पड़ेगा पिक्चर के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और उन्हें 1 मिनट के लिए भी उसके बारे में बात नहीं करी। आई फाउंड इट रियली रिफ्रेशिंग। ही वाज ट्रूली इन्वेस्टेड इन व्हाट आई हैड ब्रॉट टू हिम, व्हाट द मटेरियल आई वाज गिविंग टू हिम and how we could achieve it. And that in that meeting itself, I realized that, you know, I think he will give what it takes to the film, and he had to give a lot. वो फ्रेडी के बाद उन्होंने बहुत बॉडी वेट accumulate कर लिया था. He had to come down from 39% to 7%. He had to learn multiple skills, and even a speaking style. He's famous for his hair. मैंने सबसे पहले ये बोला था, कार्तिक यू सो फेमस फॉर योर हेयर, और मैं तो काट दूंगा क्योंकि आप हिंदुस्तान फौज में जवान हो, बट विदाउट बैटिंग एन आईलेड ही सेड व्हाटएवर इट टेक्स फॉर द रोल. So yeah, and that's how it started, and I think we've really enjoyed the journey, and I've often said the journey is very important. रिलीज का जो हमारे 3-4 दिन होते हैं वो लिटरली 3-4 दिन ही होते हैं. उसके बाद खुशी भी 1 महीने के लिए होती है या डिप्रेशन भी 1-2 महीने के लिए होता है, लेकिन जो अल्टीमेटली याद रहता है वो 1.5 साल की जर्नी जो है, जर्नी वो आपको याद रहती है जी. नहीं, आई थिंक इवन 83 में जिस तरीके से आप लोगों ने जो जो क्रिकेट को सीखने का और जो पूरे जो आई थिंक it was a really long process, and I think that really showed in the final film in terms of how comfortable they were with each other as well as with the game as well. Now अगर हम कार्तिक की भी अगर बात करें तो कार्तिक स्टार्ट करते हैं प्यार का पंचनामा से, मोनोलॉग फेमस हो जाता है. उसके बाद उनकी काफ़ी फिल्में उनकी आई और काफ़ी साल उनका एक स्ट्रगल रहा वेयर ही डिड नॉट रियली गेट द सॉर्ट ऑफ सक्सेस दैट ही वुड हैव वांटेड मे बी. एंड कांची है, आकाशवाणी उनकी एक फिल्म उनकी आई थी, काफ़ी फिल्में उनकी नहीं चली. इवन प्यार का पंचनामा 2 भी जब आई और वो कामयाब भी हो गए, उसके बाद भी ही डिड नॉट गेट मे बी व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर. अतिथि आती है लेकिन डज नॉट डू दैट वेल till Sonu Ke Titu happened, and then he becomes this star, and he works very hard after that in terms of marketing and everything. So जो एक पर्सनल उन्होंने फेलियर भी एक्सपीरियंस किया है, क्या आपको लगता है कि वो कुछ हद तक वो एक जुनून उनको इस कैरेक्टर में लाने में मदद मिली होगी? बिल्कुल. आई थिंक यू लर्न अ लॉट फ्रॉम व्हाट वी कॉल फेलियर्स. आई थिंक एक जो आदमी का कैरेक्टर होता है, एक जो पर्सनालिटी बनती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोज setbacks. To be able to think back and say, okay, this has happened, now I will push forward and I'll achieve that. And that is something which Karthik has really done in his professional life. And that, of course, जैसे आप बोल रहे हैं, that has a resonance with Chandu Champion and Murlikant's life, because at the end of the day, these are underdog stories. Karthik Aaryan is the quintessential underdog in our industry. ये ग्वालियर के लड़के आए सपने के साथ, and today he is one of the top stars of the industry, and that is why we went back to Gwalior to launch our trailer, because I thought it was a beautiful story around it. Ki a boy from Gwalior goes back to Gwalior with his proudest film to release the trailer amongst his people, and in a sense Murlikant Petkar is that. एक गांव से एक लड़का with a dream goes forward in life, faces huge setbacks, but still manages to go and achieve his dream. So I think that is what maybe Karthik also resonated with. They're both quintessential underdog stories, whether it's Karthik Aaryan's personal journey and Murlikant Petkar's journey. Right, and what's commendable is, and shows his passion for the film, he went through a personal tragedy with his mama and mummy, but he still went ahead and to Gwalior for the promo launch. So that is really, I mean, I was with him all those days, and that was amazing to see how he held himself. It was such a tragic loss. It was such a huge tragedy that happened out of the blue, literally, to somebody who he is so extremely close to. He didn't even tell me how close he was with them. Finally, when I was speaking to his father, he told me how he had been extremely close to his mama and mami who passed away. And I saw what he was going through, the dilemma he was going through. So, we are on the verge of, bringing out one of his biggest films. At personal level, he was going through that, but he just held on and he said, no, what has to be done has to be done. He chose to not really speak about it.
decided to sort of deal with it and process it, internally. But it really showed his mettle as an individual then. Lots of people feel that maybe he can win a national award for this film. Fingers crossed. I think the boy has put in what it takes to get that award. I've seen many people who have done much less get that award. So I feel that he truly deserves all the accolades. One individual award, I think, is not going to be the validation for him. I think he's going to get a lot of love for this role, because it's truly, मतलब I hate to say it myself, क्योंकि मेरी फिल्म है तो मुझे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन ये करियर डिफाइनिंग कैरेक्टर है for Karthik. And again, whatever happens at the box office happens, but he will be remembered for this character for years and years to come. Absolutely. एक बहुत ही दिलचस्प मुझे एस्पेक्ट मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप ट्रेलर्स आप कट करते हैं अपनी फिल्म्स के लिए. अगर हम ट्रेलर की बात करें यहाँ पर चंदू जैम पे, मुझे आई थिंक इट्स अ फैसिनेटिंग ट्रेलर. इट लिटरली फिल्स यू नो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज के टाइम पे थिएटर्स के लिए, थिएटर बिजनेस के लिए स्पेशली, जो आपका ट्रेलर है वो एवरी फ्रेम हैज़ टू बी लाइक रियली समथिंग एल्स फॉर पीपल टू जस्ट स्टैंड अप एंड टेक नोटिस. एंड दिस इज समथिंग दैट दिस ट्रेलर अचीव्स, कि वो हर फ्रेम में वो एक कुछ है, चाहे वो डायलॉग्स हों, चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, या चाहे वो कैमरा वर्क है, चाहे बैकग्राउंड स्कोर है, एवरीथिंग इज लिटरली स्टैंडिंग अप. आपका क्या प्रोसेस होता है इन टर्म्स ऑफ फॉर अप्रूविंग अ फाइनल ट्रेलर? हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर यू? Actually, there's no fixed process for that, फरीदुन. कभी कभी बहुत लंबा प्रोसेस जाता है, कभी कभी 3, 4, 5, 6 कट्स देखने पड़ते हैं बिफोर यू स्टार्ट फीलिंग इट. In Chandu Champion, it was the first cut that straight away hit home, and he said, "Arey yaar, this is so true to the film. This is hitting the right notes, and बस इसी को थोड़ा बहुत और embellish करना है." And I think we are with it, and it was a unanimous sort of a reaction. Karthik ने भी जब देखा, साजिद ने भी जब देखा, मैंने भी जब देखा, even my assistant directors, who I rely on hugely for feedback, because I feel your assistant directors keep you relevant, because they are from different generations. They don't allow you to become somebody who's lost touch with what's happening in the new generation. So everybody's reaction was, this is so true to the film. It's captured the soul of the film very correctly, and I'm so glad that it resonated with everybody across the board, because sometimes you can put in things or create a certain narrative which is not true to the film, and then when people like it, then you're saying ki let's keep our fingers crossed that people also like the film. But here this trailer is so true to the soul of the film that I know that if they like this, they will love the film. Right. Preetham, you've had a long association with him, especially अगर हम बात करें, सिर्फ अगर हम बात करें जो टाइटल ट्रैक है. I'm saying also from the point of view of Instagram reels right now, that Chandu Champion thing, like when you put it on a reel as a background, I think it literally fills you with goosebumps. Experience of working with Preetham, and how crucial is the background score and the songs of the film? Preetham is a natural collaborator with me. It's very simple. I work with Preetham because I love his music. I've been asked sometimes कि आपने इतनी सारी फिल्में करी है, आप प्रीतम के साथ ही काम करते हो. I said I would like to have the music in my film that I love hearing. Right? Every year when I look back at the year, मैं बोलता हूँ कि अच्छा मेरी 3 या 4 टॉप गाने कौन से थे इस साल के, उसमें हमेशा प्रीतम आता है. So why would I move away from somebody who, one, now that we have such a great working relationship, he understands me, he understands the way I use music, which is very important. He's somebody who reads my scripts and then comes and says, यहाँ भी कुछ कर सकते हैं कबीर, यहाँ भी कुछ कर सकते हैं. So it's a great sort of understanding. And I must at this point also mention Julius. Preetham and Julius is a great team, because the way Julius Packiam picks up Preetham's melodies and gives them that bigness of scale in the BGM is also something that really creates an identity for the film. इसमें भी आप देखेंगे, जब आप फिल्म देखेंगे, एक जो in fact my favorite melody of the film is yet to be released. It's the theme of the film. It's the backbone of the film. वो अभी आने वाला है.
अभी तक जो हमने रिलीज किए हैं, these are the more popular numbers, the more sort of numbers that people will enjoy. But the third song that we're going to be releasing is going to be is the soul of the film. तो वो एक हमारा टीम जो है बहुत अच्छा एक बन गया है. We are all in sync with each other. We all know how we want to use the music, because I love using music in my films. And Preetham's melodies are always the melodies that I hear them and I get goosebumps. मेरा भी as I said, हम लोग कभी कभी फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करके बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं होता है, वो गट फीलिंग ही होती है. और जब प्रीतम मुझे एक कुछ सुनाता है तो मैं आई एम नॉट एनालाइजिंग इट, आई एम जस्ट वेटिंग for my hair to stand on end and get goosebumps. I know, हाँ प्रीतम ये वाला दे दे मुझे. It's literally that. Right. Or when Julius is creating something, if I hear it and I start getting tears in my eyes, or I start getting goosebumps, I know this is the one that's going to work, because it's going to go well with the way the film is being put together. Right, and Julius has been there since Kabul Express. You've known him since from Delhi days. Tiger का भी जो एक I think theme music है, that's something that has come. We studied economics together in Delhi University. Yeah, and he absolutely loves you. I still remember I interviewed him after Tube Light, and so जी. he, I think मुझे लगता है कि आपके सच्चे दोस्त आपके वो होते हैं जब आप when like other people they're criticizing you, but they still stick around with you. And I think he was absolutely bullish about Tube Light. I still remember, like off camera, whatever discussions we had, and I think you guys have been together since a very long time. Finally, something about Sajid Bhai. You guys have collaborated in the past. जी. How important is it? And you get even your production house is part of this film, and Sajid Bhai is there. So how important is it to have like a बहुत कम लोग बचे इंडस्ट्री में, फरीदून, who have that passion for a story and a film, and to mount it in the way that Sajid and I have done for this film. And Sajid is therefore a fabulous collaborator, because otherwise क्या है कि the only drawback of I mean, it's good that studios and lots of other entities are coming in to fund films, लेकिन studios tend to become faceless. And when you're dealing with somebody like Sajid, dealing with a person who himself is so passionate about cinema, so passionate about films, and making a story the way it should be made, and not just cutting corners to keep it within a certain a budget that can be more viable. Of course, he's great at having an eye on the viability of a film, and great on being able to get the best for the film in terms of the our contracts with, whether it's with the OTT platforms or with music and everything. But at the same time, he'll never ever compromise the vision of a director just to keep the numbers in check. And that's great to have a collaborator like him, who stands by you like a rock when you're making the film and when you're putting it out into the world.